Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will discover how to start writing like a thesis. If we want to write a thesis, what will be the development or what will the steps of this process? First of all, we have to decide what is a thesis, and we have to define what is a thesis, and what is the discovering point of thesis, and what are the assertion or what are the topic focus, and what is a major point of thesis. First of all, from a thesis statement or a question that will guide the rest of your research and your writing, you have to put a focus to define a thesis. So if we want to discover a thesis, or if we want to discover, or if we want to write a thesis, first of all, you have to put your focus over one topic. You have to make concentration related to one aspect of the topic that you want to write. Sometimes thesis is the compulsory just in order to fulfill the degree requirements. The mostly the thesis is being presented in order to fulfill the degree requirement. And the process of thesis, we have to follow 5 chapters. The first one, introduction, and the second one, literature review, and third one, methodology and research methodology, and the fourth one, data analysis, and fifth one, conclusion and recommendations. But before moving to word chapters, we have to make a mind how to select a topic, how to make a first step, or how to put a first step toward thesis writing or a research writing. Let's move on. Suppose you want to suppose you want to write environmental issue connected to a global warming, and you want to write a thesis related to the issue of global warming. You have to keep in mind that there are a lot of things that are damaging or that are warning the global warming. As we consider that the first thing that is being harming the environmental or the global environment, that is the smoke of vehicle, the smoke of the factories, the chemical of the factories, or the assets of the factories. ये आपके फर्स्ट स्टेप्स हैं जो इस इन्वायरमेंट को बढ़ा रहे हैं. फिर इन्हीं में से बढ़कर अगर देखते हैं तो अगर हम एक मेजर बात करना चाहते हैं तो बट we don't want to talk about factories and we don't want to talk about vehicles, but we keep our mind, or but we make our mind to talk over or talk at the coal fires, because coal fire is also an item that is creating or that is becoming a cause for global warming, or due to the coal fire we have a lot of environmental issues. अब चूंकि हम ना ही कोई व्हीकल्स की बात करना चाहते हैं, ना हम फैक्ट्रीज की बात करना चाहते हैं, ना हम केमिकल्स की बात करना चाहते हैं, because we have many issues that are being in the part or that are being associated with the global warming, but we have to choose one thing. It's mean कि हमें अपना फोकस एक टॉपिक के ऊपर रखना है. जो एक टॉपिक है, it is necessary for you in the process of discovering and developing your thesis. The first step is to make your focus, to make your mind to write, make your mind while you are writing anything, any topic. सबसे पहले तो आपको ये अपना जहन बनाना है कि आपने किस चीज के ऊपर अपना थीसिस लिखना है, आपका टॉपिक कौन सा है, एक जर्नल फील्ड कौन सी है. जर्नल फील्ड जहां पर हम जिस फील्ड में से हम टॉपिक उठाते हैं, यहाँ पर जर्नल फील्ड की जब बात की जाती है तो हमने एक इशू उठाया है, इन्वायरमेंटल इशू. दुनिया में और भी बहुत से इशू हैं, लेकिन हमने एक इन्वायरमेंटल इशू को उठाया है. अब इन्वायरमेंटल एक जर्नल चीज है. इन्वायरमेंटल इशू जो है एक बहुत बड़ी या एक वास्ट टर्म है जिसे हम
6 मंथ में कवर नहीं कर सकते, या 1 ईयर में इसके ऊपर सारे का सारा मवाद हम नहीं लिख सकते, इवन के 10 ईयर्स में भी नहीं लिख सकते, अपनी सारी स्टडी को कंप्लीट नहीं कर सकते। लेकिन बट वी हैव टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ अ डिग्री। हमें क्योंकि अपनी डिग्री की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, एंड वी आर बाउंड टू फुलफिल आर थीसिस प्रोजेक्ट विद इन द टाइम टेन्योर। और हमें अपने टाइम टेन्योर के अंदर ही अपनी उस कह लें कि थीसिस की राइटिंग को हमें मुकम्मल करना है। अगर हम मुकम्मल नहीं करेंगे तो हमें डिग्री इशू नहीं होगी, सबसे बड़ी बात है। तो लिहाजा हमें कोई एक बात उठानी, इन्वायरमेंटल इशू एक जर्नल टर्म है। अब इन्वायरमेंटल इशू, जितनी भी चीज़ें हैं जो इन्वायरमेंटल इशू क्रिएट कर रही हैं, वो सारी इसके अंदर आ सकती हैं। लेकिन हमें एक चीज़ उठानी है, हमने उठा लिया यहाँ से कोल फायर। जब हमने कोल फायर्स को उठा लिया है, तो कोल फायर के ऊपर हम क्वेश्चन क्या बनाएंगे, थीसिस क्वेश्चन क्या बनाएंगे। दूसरा स्टेप हमारे पास जो थर्ड आता है, पहले पे हमें एक जर्नल टॉपिक लेना है, सेकंड पे हमें एक फोकस टॉपिक करना है जो उसी जर्नल में से निकलेगा। जैसे कि एक टर्म मेजर सी बात बता दूं, एक जर्नल फील्ड है इंग्लिश। इंग्लिश एक बहुत बड़ी फील्ड है। अब इंग्लिश में से आगे फिर इसकी पार्ट्स निकल आते हैं। कोई कहता है जी ये इंग्लिश लिटरेचर की बात करता है, कोई कहता है इंग्लिश लिंग्विस्टिक की बात करता है। फिर इसके बाद लिंग्विस्टिक वाले कहते हैं भाई हम तो इंग्लिश 1 की बात करते हैं, वो कहता है कोई सिंटेक्स की बात करता है, कोई इंग्लिश 1 की बात करता है, कोई इंग्लिश 2 की बात करता है, कोई इंग्लिश 3 की बात करता है, कोई इंग्लिश 4 की बात करता है। इट्स मीन एक बड़ी टर्म में से यू हैव टू सिलेक्ट एंड यू हैव टू डिवाइड इट्स कैटेगरी इनटू सब कैटेगरी। आपको उस कैटेगरी को सब कैटेगरी में डिफाइन करना है in order to make your assignment healthy, in order to make your thesis as good as you can। आपको अपना थीसिस बेहतर बनाने के लिए या अपने असाइनमेंट को बेहतर बनाने के लिए आपको बहुत बड़े जर्नल टॉपिक में से एक, आप कह लें कि एक स्मॉल टॉपिक जो है उसे आपको यूटिलाइज करना है, एक फोकस टॉपिक उसमें से निकालना है। जब सेकेंड लेवल पे आप अपना फोकस टॉपिक को फाइंड आउट कर लेंगे, निकाल लेंगे, तो एट थर्ड लेवल क्या होगा, थर्ड लेवल पे हम क्या करेंगे, हम थर्ड लेवल पे अमूमन क्वेश्चन बनाते हैं जो हमारे उस पॉइंट को सपोर्ट करेंगे। हमारे पास तो बस एक ही बात थी, वो कोल फायर है। अब कोल फायर के ऊपर हमें कुछ क्वेश्चन भी बनाने हैं ताकि वो हमें उनके आंसर ढूंढने के लिए मटेरियल मिल सके। और जब हम क्वेश्चन नहीं क्रिएट करेंगे तो वी विल नॉट बी केपेबल इनफ टू आंसर द क्वेश्चंस, और वी विल नॉट be in a position to get all the material related to coal fire, and we don't know how many things can be included in the coal fires। अब coal fire भी मजीद एक टर्म है, लेकिन हमें कुछ अपने आप को स्पेसिफाई करना है ताकि हम अपने क्राइटेरिया के अंदर बात करें। अगर आप कोल फायर की इंडस्ट्री की बात करने लग पड़ेंगे तो वो हमारा इशू नहीं है। हम कोल फायर के ऊपर वो बात करेंगे जो इन्वायरमेंटल इश्यूज के ऊपर आ रहे होंगे। अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई ऐसे क्वेश्चन क्रिएट किए जाए जो इन्वायरमेंटल इश्यूज के ऊपर सूट करते हों। तो लिहाजा एट थर्ड लेवल पे वी हैव टू मेक क्वेश्चन दैट आर associated or that will be associated with the environmental issues and the coal fires and the intermingle connectivity, and they must be show the interlinked connectivity between the coal fires and the environmental issues। आपको environmental issues के दरमियान में और coal fire के दरमियान में इनको लिंक करने वाले के ऊपर भी क्वेश्चन बनाने हैं, कोल फायर के ऊपर भी क्वेश्चन बनाना है, इन्वायरमेंटल इश्यूज के ऊपर भी क्वेश्चन बनाना है। तो हम देखते क्या है, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स के तौर पर यहाँ पर पुट किए गए हैं क्वेश्चन, जैसा कि हाउ प्रिवलेंट आर कोल फायर्स, ये कितनी खतरनाक हो सकती है, ये कितनी मुज़र है। इन व्हाट वेज डू कोल फायर कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग, किस तरह ये जो कोल फायर है ये ग्लोबल वार्मिंग के अंदर किस तरह अपना रोल अदा करती है, वो कौन कौन से अवामिल हैं या वो कौन से जराए हैं जिनसे ये कोल फायर को डिस्टर्ब करती है। अगर आप कोल आम रूटीन में इस्तेमाल कर रहे हैं तो तब तो कोल फायर भी कई टाइप्स है ना। अब कोल की फायर ही होती है, आप यहाँ पर आप कह लें कि यहाँ पर आप बारबेक्यू बना रहे होते हैं तो वहाँ पे तो ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं दे रही होती, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा आप कह लें कि जो स्मोक है वो इतना ज़्यादा रेज नहीं हो रहा होता, एक स्लाइटली सी एक आइटम हो रही होती है, एक स्लाइटली सी आप कह लें मिकदार इसमें से निकल रही होती है। यही कोल फायर है जो आप जिसे आप इसे फायर की बजाय आप कह लें कि जहाँ से स्मोक नहीं निकलता है, जिससे डिस्टर्बेंस नहीं होती, आप इसी कोल फायर से आप इंजन की यूटिलाइज करते हैं, वहाँ पर बिल्कुल धुआं नहीं निकलता, बिल्कुल स्मोक नहीं होती, ये भी बहुत कम डेंजरस होता है। लेकिन आप किस जरिए से बताना चाह रहे हैं कि ये कोल फायर डेंजरस है? अगर वो कोल फायर इन्वायरमेंटल या ग्लोबल वार्मिंग के अंदर ये कंट्रीब्यूट करता है, तो व्हाट आर द एलिमेंट्स और व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ कोल फायर्स और व्हाट आर द मेजर यूजेस ऑफ द कोल फायर दैट आर बीइंग एसोसिएटेड विद द ग्लोबल वार्मिंग, और वो कौन से इश्यूज हैं या वो कौन सी रीजंस हैं
जो कोल फायर के ग्लोबल वार्मिंग के साथ अटैच कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहे हैं। फिर कहते हैं जी व्हाट प्रूफ इज देयर दैट कोल फायर्स इज इफेक्ट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। आपके पास वो सबूत कौन से हैं? डू यू हैव वैलिड प्रूफ? इफ सो व्हाट आर दे? अगर आपके पास हैं तो वो कौन से हैं? डिफाइन देम, इन्फॉर्म देम, रेफरेंस के साथ उन्हें पुट करें, दलाइल के साथ, दलील के साथ उन्हें बयान करें कि भाई ये चीजें हैं और ये यहाँ पर इन्हें कोल फायर जो है ये ग्लोबल वार्मिंग को, ये ग्लोबल वार्मिंग डिस्टर्ब कर रही है। तो हमें क्या करना है? हमें बेसिकली सबसे पहले एक मेजर टॉपिक को सिलेक्ट करना है, मेजर फील्ड को सिलेक्ट करना है। ये हाउ टू डिस्कवर अ थीसिस, कि यहाँ हाउ टू डिस्कवर प्रिलिमिनरी स्टेप्स ऑफ थीसिस। आपके इब्तदाई मराहिल कौन से हैं थीसिस के? इट्स मीन एट फर्स्ट लेवल यू हैव टू चूज अ टॉपिक। it will be a journal term of any field, ये किसी भी फील्ड से journal term होगी। after selecting your journal term you have to specify and you have to focus over the one aspect of that journal field। आप उस journal field में से किसी एक पहलू को उठाएंगे। जब एक पहलू को उठाएंगे फिर it's your duty to make a question related to that focus topic, that the topic that you have selected। फिर आपको कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन बनाने हैं उस टॉपिक के ऊपर जो आपने जर्नल टॉपिक्स में से निकाले हैं। फिर जब क्वेश्चन बन जाएंगे तो देन आपके लिए मटेरियल को इकट्ठा करना आसान हो जाएगा। देन आप अपनी चीजों को आसानी से बयान कर लेंगे। अब जो थीसिस स्टेटमेंट 4th लेवल आता है, थीसिस स्टेटमेंट ये एक स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर आपका पूरे का पूरा थीसिस प्रीवेल करता है, ठीक है। अब उसने पूछा है कि वो क्या चीजें हैं कोल फायर की जो कंट्रीब्यूट करती हैं किसमें? ग्लोबल वार्मिंग में। तो यहाँ पे कहता है जी रेगिंग इन माइंस फ्रॉम पेंसिल्वेनिया टू चाइना, कोल का ट्रांसफॉर्म करना या कोल का निकालना पेंसिल्वेनिया से चाइना की तरफ लेके जाना। कोल फायर्स थ्रेटन टाउन्स, ये टाउन्स को खतरा है। पॉइजन एयर, एयर को ये जहरीला कर सकता है। एंड वाटर, और पानी को ये खतरनाक कर सकता है। एंड एडिड टू ग्लोबल वार्मिंग, और ये ग्लोबल इश्यूज के अंदर ये मामलात को खराब मजीद कर सकता है। तो लिहाजा ये थीसिस स्टेटमेंट जब हम बनाएंगे तो हम थीसिस स्टेटमेंट के अंदर वो सारे के सारे पॉइंट्स लिखने की कोशिश करेंगे उन वर्ड्स के अंदर जिनके ऊपर आगे हम मजीद बात करना चाहते हैं। तो ये 4 मेजर पॉइंट्स हैं। इन्हीं पॉइंट्स की बिना पर आप कह लें कि ऑलमोस्ट हमारे पास 8 पॉइंट्स हैं। ये 4 फर्स्ट पॉइंट है जिनकी बिना पर आप अपना थीसिस स्टार्ट करेंगे। एट 5th लेवल पे आपको क्या करना है, क्या कहता है मजीद? हमें मजीद जब आप डिस्कवर कर लेते हैं तो फिर आपको क्या देखना है? 5th लेवल पे आपको देखना है, अगर आप थीसिस स्टेटमेंट बना लेंगे तो फिर आपको जो ऊपर हमने क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, नीचे फिर हमने थीसिस स्टेटमेंट के अंदर थ्रेटन टाउन्स किया है, फिर पॉइजन एयर किया है और पॉइजन वाटर किया है। तो आप वो सारे का सारा मटेरियल ट्राई टू कलेक्ट द मटेरियल, ठीक है। आप 5th लेवल पे क्या करेंगे? यहाँ पर मटेरियल सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। वो सारे का सारा मटेरियल जो कोल फायर से रिलेट करेगा, ये कोल फायर जो थ्रेटन करता है जिन चीजों को, स्पेशली हाउ कोल फायर थ्रेटन टाउन्स, अगर आप ये गूगल के ऊपर लिखेंगे तो आपको इसके ऊपर मटेरियल मिल जाएगा। अगर आप लिखेंगे हाउ कोल फायर पॉइजन एयर तो आपको इसके ऊपर मटेरियल मिल जाएगा। एंड हाउ कोल फायर पॉइजन वाटर, आपको इससे भी मटेरियल मिल जाएगा। और हाउ इट एड इन द ग्लोबल वार्मिंग, और हाउ इट डैमेज द ग्लोबल अफेक्ट, तो किस तरह ये ग्लोबल के ऊपर ये अफेक्ट करता है, उससे भी आपको मटेरियल मिल जाएगा। इट्स मीन ये जो थीसिस स्टेटमेंट के अंदर जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं और क्वेश्चन के अंदर जो हम क्वेश्चंस लिखते हैं, क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए हमने थीसिस स्टेटमेंट लिखी है। और जो थीसिस स्टेटमेंट लिखी है तो अगर इनको रिलेट करें तो आपको कॉमन चीज मिलेगी। यहाँ पर देखें, दूसरा क्वेश्चन है, कहता है, पहला क्वेश्चन है, कहता है जी क्या ये खतरनाक लगती है आपको, या ये वाकई डेंजरस लगती है। फिर इन व्हाट वेज डू कोल फायर कंट्रीब्यूट, कहता है किन तरीकों से कोल फायर कंट्रीब्यूट करती है। तो यहाँ पे कहता है जी कोल फायर कंट्रीब्यूट करती है किस तरह से, ये टाउन को थ्रेट करती है, एयर को थ्रेट करती है, वाटर को थ्रेट करती है, ठीक है, इस तरह से कंट्रीब्यूट करती है। कहता है फिर आपके पास प्रूफ कौन से हैं? इट्स मीन आपका सेकंड क्वेश्चन आपकी थीसिस स्टेटमेंट को सारा हिट कर रहा है। फिर आपके पास प्रूफ क्या है, कौन से हैं? इट्स मीन यू हैव टू पुट द वैलिड रीजंस एंड ऑल द प्रूफ्स दैट यू हैव कलेक्टेड फ्रॉम योर रिसर्च। आपको वहां पर लिटरेचर रिव्यू में प्रूफ भी देने हैं, बताना भी है कि ये चीजें हैं जो इनको नुकसान पहुंचा रही हैं। तो फिर नेक्स्ट क्या होगा, एक और एग्जांपल हमारे पास थीसिस स्टेटमेंट की मिलती है। थीसिस को डिस्कवर करते हैं तो यहाँ पर आप कह लें कि डिस्कवर कैसे करता है। अगेन वो टेक्नोलॉजी और
कंज्यूमरिज्म की बात करता है, तो ये एक जर्नल टर्म है। तो टेक्नोलॉजी और कंज्यूमरिज्म के अंदर उसने टेलीविजन को उठा लिया, टेलीविजन के अंदर उसने इसके इम्पैक्ट जो कंज्यूमरिज्म के हैं वो उठा लिए हैं, कि किस तरह ये विद इन न्यूक्लियर फैमिली फ्रॉम द मिड 15 टू द अर्ली 16, ये किस तरह ये एक न्यूक्लियर का रोल अदा करता है फैमिली के दरमियान। जो 50 साल 60 साल के लोग पहले के लोग हैं, उनके दरमियान क्या ताल्लुक क्रिएट करता है। और थीसिस स्टेटमेंट क्या बनाता है, सेम वही स्टेप इस्तेमाल करता है, उसी तरह क्वेश्चन बनाता है, उस तरह चीज़ों को लेके आगे बढ़ता है। क्या आपकी हैबिट जो है वो चेंज हो जाती हैं, क्या आपकी जो कंज्यूम करने की, एनर्जी कंज्यूम करने की जो वजह है वो भी टीवी है, या आपको मेंटली कंज्यूम्स भी मिलता है। कौन कौन से असर हैं जो टीवी की वजह से आते हैं आपके पास। और टीवी कहाँ से निकलता है, टेक्नोलॉजी और कंज्यूमरिज्म से। तो इट्स मीन first of all you have to select the major topic. It's in major field of any major topic from any field. After that you have to put a focus over the major field and select one topic, and one topic. After that, putting the one topic, you have to choose pros and cons of that specified topics, and you have to make a question and make thesis statement just in order to fulfill all the requirement of your data. तो ये आपके पास सेकंड एग्जांपल है कि किस तरह से आप कुछ चीजों को यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर थीसिस स्टेटमेंट की एग्जांपल कोट करता है कि थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है। थीसिस स्टेटमेंट के अंदर इसमें ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है इन विच यू आर केपेबल इनफ टू डिफाइन ऑल द एस्पेक्ट एंड ऑल द डायमेंशन ऑफ योर थीसिस। इसी के अंदर आपने अपनी पूरी थीसिस की, आप कह लें कि एक स्केच बना देना होता है। 2-3 लाइंस के अंदर आपने पूरे थीसिस का मैप दे देना होता है। अगर हम वापस पलटें तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने कोल फायर की बात की थी, तो थीसिस स्टेटमेंट के अंदर हमने ये बता दिया कि कोल फायर में कितनी चीजें उठाएंगे हम। कोल फायर जो डैमेज कर रहा है किन किन चीजों को, टाउन को, एयर को, वाटर को, इसके अलावा भी और सी बहुत सी चीजें हैं जिनको डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन हमने यहाँ पर 3 उठाई हैं, इसमें हमने 3 के ऊपर काम करता है, 3 पॉइंट्स लेके चल रहे हैं। इसी तरह जो थीसिस स्टेटमेंट होती है, ये थीसिस स्टेटमेंट की बात बताई जा रही है आपको कि थीसिस स्टेटमेंट जब भी होगी वो आपके सब्जेक्ट को एक बाउंड्री दे देगी, एक लिमिटाइज कर देगी, एक लिमिटेशंस के अंदर बताएं कि आप मैं इन चीजों के ऊपर अफेक्ट करूंगा, इनके ऊपर मैं काम करूंगा और इन चीजों के ये काम करूंगा। तो यहाँ पर थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर दोबारा देखो, यहाँ पर क्या कहता है, although companies often have legitimate concerns that lead them to monitor employees' internet uses from expensive security breaches to reduce productivity. The benefits of electronics surveillance are outweighed by its cost to employees' privacy and automation. ये फिर कहता है, much aligned और much elegant, the subject of the unwarranted fears, most bats are harmless and highly beneficial. ये थीसिस स्टेटमेंट की बात की जा रही है और रिलेटेड टू किसके बात की जा रही है, ये रिलेटेड टू आप कह रहे हैं इंडस्ट्री की बात की जा रही है, ऑटो इंडस्ट्री की बात की जा रही है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के पीछे हमने टॉपिक पढ़ा है उसकी बात की जा रही है। तो नीचे अगेन उसने जो ग्लोबल वार्मिंग की बात की थी, उसे दोबारा फिर उसने यहाँ पर थीसिस स्टेटमेंट ग्लोबल वार्मिंग के साथ पीस ने अगेन दोबारा उसने कोल फायर का यहाँ पर थीसिस स्टेटमेंट दिया है। थीसिस स्टेटमेंट ये वो स्टेटमेंट है जिसके अंदर आपने अपने पूरे थीसिस को एक बाउंड्री देनी होती है, लिमिटाइज करना होता है। यू हैव टू डिसाइड हाउ मेनी थिंग्स दैट यू विल सिलेक्ट इन योर लिटरेचर रिव्यू। आप कितनी चीजों के ऊपर काम करेंगे तो आपको थीसिस स्टेटमेंट बनाने में आसानी ये होती है कि आप उन्हीं चीजों के ऊपर फिर काम करते हैं। अगर आपकी थीसिस स्टेटमेंट नहीं होती तो फिर इट्स मीन आपने उसे कोई बाउंड्रीज नहीं दिया। इसके एग्जांपल में एक और दूंगा। अगर मैं ट्रांसलेशन की बात करूं, क्योंकि मेरी इस फील्ड का सब्जेक्ट है, तो मैं ट्रांसलेशन की अगर मैं बात करूं तो ट्रांसलेशन के ऊपर मैं कहता हूं मैं ट्रांसलेशन के ऊपर थीसिस लिखना चाहता हूं। पहले मैंने ये सोचा कि जर्नल टर्म है ट्रांसलेशन, क्योंकि ट्रांसलेशन तो बहुत सी किस्म की होती है। मशीन ट्रांसलेशन होती है, फिर इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन होती है, फिर इंटरसिम्योटिक ट्रांसलेशन होती है, लेकिन बहुत सी टाइप है। हमारा टाइप ऑफ ट्रांसलेशन टॉपिक नहीं है। बेसिकली मैं बताना ये चाहता हूँ कि मैं थीसिस लिखना चाहता हूँ और मैंने एक जर्नल टर्म सेलेक्ट कर ली, वो है ट्रांसलेशन। एक बहुत बड़ी टर्म है, इसे मैंने सब डिवाइड कर दिया। मैं कहता हूँ मैं इसमें से क्या लूंगा, फिर मैं कहता हूँ ट्रांसलेशनल एरर ले लेता हूँ। अब ट्रांसलेशनल एरर भी बहुत सी कैटेगरी के हैं। अब पहले ट्रांसलेशन की टर्म लिया, ये भी बहुत बड़ी है, ट्रांसलेशन एरर लिया, ये भी बहुत बड़े हैं। इसमें मैंने अभी कोई फोकस टॉपिक नहीं लिया तो मुझे फोकस लेना पड़ेगा। तो मैं क्या फोकस करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं इसमें से सिंटैक्टिक एरर को उठा लेता हूँ, जस्ट सिंटैक्टिक एरर को उठा लेता हूँ। अब सिंटैक्टिक एरर वो होंगे जो सिंटेक्स के रिलेटेड होंगे, मतलब जो सेंटेंस से रिलेटेड होंगे। तो लिहाजा मैं कहता हूँ मैं इसकी थीसिस स्टेटमेंट बना देता हूँ, अ स्टडी ऑफ ट्रांसलेशनल एरर। अब एक स्टडी है किसकी, ट्रांसलेशनल एरर की। अब पहले क्या करूंगा, मैं पहले ट्रांसलेशन को डिफाइन करूंगा, फिर ट्रांसलेशनल एरर को डिफाइन करूंगा। ट्रांसलेशनल एरर कितनी टाइप के होते हैं, लिटरेचर रिव्यू में मैं ये भी बयान करूंगा।
फिर करूंगा अ स्टडी ऑफ ट्रांसलेशनल एरर एट सिंटैक्टिक लेवल। मेरा लेवल कौन सा होगा? सिंटैक्टिक। सिंटैक्टिक लेवल के अंदर क्या आएगा? सेंटेंस। सेंटेंस में कितनी चीजें होती हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, सारी की सारी ग्रामर होती है ऑलमोस्ट। तो इट्स मीन मैं सेंटेंस पे काम करूंगा, उसमें नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंफिनिटिव, जेरंड, पार्टिसिपल, मैं इन चीजों के ऊपर काम करूंगा। और मैं सिंटैक्टिक लेवल के अंदर जब मैं टॉपिक डिफाइन कर रहा हूं तो मैंने ये बता दिया मैं एक स्टडी करना चाहता हूँ ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन में से ट्रांसलेशनल एरर लेना चाहता हूँ, ट्रांसलेशनल एरर में से मैं सिर्फ सिंटैक्टिक एरर लेना चाहता हूँ। तो ये मैंने जर्नल टर्म को सब डिवीजन दिया और उसकी अगेन डिवीजन कर दी। तो लिहाजा इट इज नेसेसरी फॉर अस टू divide and put the focus of the topic that we want to write। हमारे लिए जरूरी है कि हम उस टॉपिक को बिल्कुल क्लैरिफाई करें जिसे हम लिखना चाह रहे हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मतलब आ रही है सर। चलिए, बहुत शुक्रिया। फिर जी नेक्स्ट पॉइंट होता है आपको आउटलाइन बनानी होती है। क्या आउटलाइन बनानी है आपको? अपने टॉपिक से रिलेटेड आपको आउटलाइन बनानी है। कैसे बनाएंगे? मेक अ लिस्ट ऑफ द मेन पॉइंट्स। जैसे कि अभी मैंने बात की कि मैंने ट्रांसलेशन के ऊपर टॉपिक बात करनी है, तो मैंने क्या लिखूंगा? पहले में मैंने लिखा ट्रांसलेशन। दूसरा पॉइंट होगा ट्रांसलेशनल एरर। तीसरा होगा टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन एरर। चौथा पॉइंट होगा सिंटैक्टिक एरर। ये मैंने 4 पॉइंट बना लिए। These points will form the organization pattern of your paper। यही जो आउटलाइन होंगी, यही जो पॉइंट होंगे आपके पूरे के पूरे पेपर को ऑर्गेनाइज कर देंगे। मेक स्पेशल नोट ऑफ कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम योर सोर्सेज दैट यू विश टू पैराफ्रेज इन योर टेक्स्ट। फिर एक एक को पकड़ के मैं उसके ऊपर मटेरियल इकट्ठा करना शुरू कर दूंगा, और जब एक एक को मैं इकट्ठा करूंगा तो फिर डेफिनेटली मैं उनके ऊपर काम करना शुरू कर दूंगा। फिर नंबर 3 पे ड्राफ्ट एंड आउटलाइन मूविंग फ्रॉम मेन आइडिया टू डिटेल। पहले मेन आइडिया लें, जैसे मैंने कहा था, पहले जर्नल लें, फिर जर्नल से सब कैटेगरी के अंदर आएं और उसे फोकस करें, डिटेल बयान करते जाएं कि आप इसे कर लें। फिर आप उस चीज को रिवाइज भी करें अगर आप जरूरत पड़ती है कि मैंने कहीं कमी तो नहीं कर दी, कुछ खामी तो नहीं छोड़ दी। अगर कोई छोड़ दिया तो वो भी आपकी रिकवर हो जाएगी। यहाँ पर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी शायद पुट करेंगे हम यहाँ पर। तो ये यहाँ पर उसने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है कि थीसिस टेलीविजन प्रोग्राम एंड एडवर्टाइजमेंट ड्यूरिंग द 1950 promoted consumer habits that promise to support domestic happiness while strictly defining gender roles within the nuclear family। इंट्रोडक्शन बयान किया, बैकग्राउंड एंड सेट्स ऑन द टेलीविजन व्यू हैबिट्स। फिर कहता है जी मैंने पहला पॉइंट दिया है द न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है। फिर दूसरा पॉइंट मेंबर लिखा, जेंडर रोल लिखा, और मेल एडल्ट्स और चिल्ड्रन की हैबिट लिखी, फीमेल एडल्ट्स और फीमेल चिल्ड्रन की हैबिट्स लिखी। वैल्यू क्या है होम में, कन्वीनियंटी कितनी है, प्रॉस्पेरिटी कितनी हुई टेलीविजन के यूज करते हुए, या आप डीमोरलाइज कितने हुए। फिर टेलीविजन के शोज कौन कौन से हैं, कौन से स्पेसिफिक शो आपने देखे हैं। फिर जेंडर रोल्स क्या है इसके अंदर, फिर फैमिली वैल्यूज कितनी बढ़ती हैं इसके साथ। फिर एट द एंड पे कमर्शियल स्पेसिफिक एग्जांपल्स क्या बनती है, कमर्शियल को क्या फायदा होता है। ये उसने आउटलाइन बनाई है एक थीसिस के प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पर। और अगर मैं अपने पॉइंट की आउटलाइन बनाऊंगा तो मैं बताता हूँ, पहले मैं ट्रांसलेशन को डिफाइन करूंगा, फिर मैं ट्रांसलेशनल एरर को डिफाइन करूंगा, फिर टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशनल एरर को डिफाइन करूंगा, फिर सिंटैक्टिक एरर को बयान करूंगा, और एट द एंड पे सिंटैक्टिक एरर के अंदर मैं कौन कौन सी चीजें उठाऊंगा। मैं नाउन उठाऊंगा, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, पार्टिसिपल। फिर पार्टिसिपल साथ में आप कह लें कि पार्टिसिपल है, फिर मेरे पास जेरेंड है और इन्फिनिटिव। मैंने ये चीजें डिफाइन की हैं, इनकी मैंने आउटलाइन बनाई है। तो आप मेरा जो मटेरियल होगा सारा इसी से रिलेटेड होगा। फिर आप पहला ड्राफ्ट बनाने लग पड़ेंगे जब आपके पास मटेरियल आ जाएगा, आउटलाइन इकट्ठी करेंगे, और आउटलाइन जब इकट्ठी कर लेंगे फिर आप अपना पहला जो ड्राफ्ट है, फर्स्ट ड्राफ्ट जो है, उसके बारे में आप लिखना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपने मेजर टॉपिक भी सिलेक्ट कर लिया, सब टॉपिक भी ले लिया, उसकी सब कैटेगरी के अंदर फोकस भी कर लिया, उसकी टाइप्स को भी उठा लिया आपने, उसकी आउटलाइन भी बना ली। जब आपने अब आउटलाइन बना ली, थीसिस स्टेटमेंट बना लिया, तो इट्स मीन यू विल हैव टू स्टार्ट योर टॉपिक। तो आप अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। बिगिन टू राइट इन चंक्स ऑफ टेक्स्ट डिफाइंड बाय द पैरामीटर्स ऑफ ईच मेन पॉइंट। आप हर मेन पॉइंट के ऊपर हर मेन पॉइंट को अलग अलग से लिखते जाएं। कंटिन्यूसली रेफर टू द थीसिस इन ऑर्डर टू स्टे ऑन ट्रैक, और ताल्लुक बनाते जाएं हर पॉइंट का अपने थीसिस के साथ। अगेन मैं फिर वापस चलता हूँ कोल की तरफ। कोल की बात करते हैं तो वहां पर एनवायरमेंटल वार्निंग की बात की जा रही थी या ग्लोबल वार्निंग की बात की जा रही थी। कोल को डिफाइन करें, कोल की अफेक्ट को बयान करें, लेकिन अफेक्ट को बयान करते करते साथ में टच देते रहें कि ये अफेक्ट वार्निंग के ऊपर कैसे होता है, ये जो अफेक्ट है किस तरह से हम यूटिलाइज करते हैं। आप कह लें कि जो कोल फायर है वो ग्लोबल वार्मिंग को कैसे अफेक्ट करता है, उसे भी साथ टच करते रहें,
ताकि रीडर को ये लगे कि यहाँ पर टॉपिक के अंदर इंटरकनेक्टिविटी पाई जा रही है। फिर ट्रैक्स यूज की टर्म्स फ्रॉम द थीसिस टू थ्रेड ईच सेक्शन टुगेदर। इट्स मीन बातों को जोड़ते जाएं, थीसिस के पॉइंट्स को आपस में लिंक करते जाएं। इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्सेज एज यू ड्राफ्ट एंड इंक्लूड पैरेंथेटिकल साइटेशन। अच्छी से रेफरेंस इस्तेमाल करें, जहां से मटेरियल उठाया है वहां पर रेफरेंस जरूर दें। ऐसा ना हो कि आपका प्लेजरिज्म बन जाए, कॉपी पेस्ट मत मारें, चीज़ों को अपने अल्फाज में बयान करें और जहां से मटेरियल उठाया है अपनी आउटलाइन का वहां से रेफरेंस देते रहें। मूव फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट रादर फ्रॉम आथर टू आथर। पॉइंट से पॉइंट की तरफ बढ़े, एक पॉइंट को बयान किया है फिर दूसरा पॉइंट बयान करें, फिर तीसरा पॉइंट बयान करें। राइटर की तरफ मत दौड़ें, अपने पॉइंट्स के ऊपर फोकस करें, जो आपने पॉइंट्स निकाले हैं अपनी आउटलाइन के ऊपर फोकस रखें, अपनी थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर फोकस रखें, जिस तरह आपने निकाले हैं उन्हीं के ऊपर ताकि आप आगे काम कर सकें। फिर इंटीग्रेटिंग सोर्सेज क्या है? रिसर्च पेपर्स डिमांड अबंडेंट रेफरेंस टू प्रोफेशनल सोर्सेज। आपको यहाँ पर एक अच्छा प्रेजेंटेशन थीसिस के लिए आपको रेफरेंस देने पड़ेंगे, साइटेशन करनी पड़ेगी। लिहाजा जहां से भी डाटा उठाते जाए, मैं बार बार बता रहा हूँ कि अपने डाटे को रेफरेंस जरूर दें अगर आप चाहते हैं कि आपका पेपर अच्छा नजर आए। योर जॉब इज टू मैनेज those voices and synthesis them to use them to substantiate your claim। अपना जो आपने जो बात की है उसे प्रूव करने के लिए रेफरेंस का होना, आपने कहा है जी 2 और 2 4 की बजाय 5 होते हैं, तो लोगों को आपको साबित करना है 2 और 2 5 होते हैं। तो आप अपनी जुबान से साबित नहीं करेंगे, आप रेफरेंस देंगे वहां पर, ये किसने बात की है, कितनी बार हुई है, कहाँ पे हुई है, आप ये बताएंगे। फिर ये इंटीग्रेटेड सोर्स क्या होते हैं? ठीक है, इंटीग्रेटेड सोर्स है ये, इनको कैसे डिफाइन किया जाता है? इसमें आपको रेफरेंस को पुट करना है, रेफरेंस के ऊपर डिटेल बात करनी है। तो यहाँ पे उसने टेलीविजन की एग्जांपल को वहां पर उसने बताया है कि ये इंटीग्रेटेड सोर्स कौन से हैं, जहां से ये टेलीविजन की बात उठाई गई थी, जहां पर आप कह लें कि टेक्नोलॉजी समराइजेशन की जो बात उठाई गई थी या कंज्यूमराइजेशन की बात उठाई गई थी, तो किस तरह वो टेक्नोलॉजी कंज्यूमराइज करती है चीज़ों को या पर्सनस को, तो वो कौन कौन से जराए हैं जहां से मटेरियल लिया गया था। उन्होंने ये 3 एग्जांपल्स यहाँ पर भी कोट किए हैं। तो फिर एट द एंड पे आपका रिवीजन करें। रिवीजन क्या करनी है? चेकलिस्ट करें, रीड द असाइनमेंट शीट, अंडरलाइन योर थीसिस, read aloud, label the topic of each paragraph in the margin, revise main idea, consider clarity and relevance। चीजों को साफ साफ नजर आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियरिटी नहीं होगी तब भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी। डिटेल को चेक करें, क्लैरिटी देखें ठीक है, कोहेजन ठीक है, इंटरलिंक्शन ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेशन ठीक हुई है, ग्रामर ठीक है, आपकी पंक्चुएशन ठीक है, वर्ड चॉइस ठीक है, स्पेलिंग ठीक है। ये अपनी खुद की गलतियां भी देखते रहें, अगर नहीं मिलती तो फिर भी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उन्हें निकालते रहें। तो ये सोर्स फॉर हेल्प, आप मटेरियल कहाँ से ले सकते हैं अपनी मदद के लिए? थीसिस लिखते वक्त अपने प्रोफेसर से, अपने फील्ड के प्रोफेसर से रब्ता करें, लाइब्रेरी से ले सकते हैं, आप वहाँ से अपनी हेल्प कर सकते हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज से ले सकते हैं, आपकी जो अपनी यूनिवर्सिटी की लैब है आप वहाँ से मटेरियल ले सकते हैं। इसमें जहाँ से आपको बेहतर लगता है वहाँ से आप मटेरियल उठा सकते हैं। बट डू रिमेंबर, पुट पुट अ रेफरेंस फॉर एवरी पॉइंट। हर पॉइंट के लिए रेफरेंस जरूर पुट करें वहाँ पर, नहीं तो प्लेजरिज्म कंसिडर कर लिया जाएगा। ट्राई टू कन्वर्ट योर टॉपिक इन योर ओन वर्ड, अपने अल्फाज में खुद क्रिएट करने की कोशिश करें, खुद सेल्फ राइटिंग करने की कोशिश करें ताकि आप अच्छी तरह से परफॉर्म कर लें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रॉम माय साइड। और if you have any question, any question you can ask. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ओके सर। हेलो जी जी सर, इसमें थीसिस की जो लेंथ है वो डिपेंड करती है? नहीं थीसिस की लेंथ देखिए मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, मिनिमम? नहीं देखिए लेंथ नहीं, इसकी